اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 51۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ آ کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، الذین ان لوگوں کو جنہیں اوتو دیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یؤمنون وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں، بالجبتی جبت پر، والطاغوتی اور طاغوت پر، ویقولون اور کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفروا کفر کیا، ہؤلاء کہ یہ سب، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، سبیلاً راستہ۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات سماعت کیجئے گا۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ شرک کی مذمت کو بیان فرمایا اور یہود کے دعووں کو بیان کیا کہ یہود دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے پاکیزگی کے لیے منتخب فرما لے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی کے لیے یا پاک بازی کے لیے اسے ہی منتخب فرماتا ہے جو پاک باز بننے کی خود کوشش کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہود کی اسلام دشمنی کو بیان فرمایا ہے کہ یہود اس حد تک اسلام کی دشمنی کے اندر آگے جا چکے ہیں کہ انہیں مشرک لوگ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہدایت پر معلوم ہوتے ہیں۔ یہود مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک مسلمان باطل پر ہیں اور کافر اور مشرکین وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ یہود کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ پیغمبر اسلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو کتاب لے کر آئے ہیں، وہ دین بھی سچا ہے، وہ کتاب بھی سچی ہے۔ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی برحق ہے، مگر ان ساری معلومات کے باوجود یہود پھر بھی کافروں کو ہدایت یافتہ قرار دیتے، اہل ایمان کو گمراہ قرار دیتے۔ اندر سے انہیں اس بات کا علم تھا کہ مسلمان حق پر ہیں، لیکن اس کا اپنی زبان سے اعلان نہیں کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ اعلان کر دیتے تو یوں ان کی سرداری خاک میں مل جاتی، انہیں کوئی بھی عزت اور عقیدت اور احترام کی نگاہ سے نہ دیکھتا۔ اگرچہ یہود اسلام قبول کر لیتے تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا، لیکن وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اگر ہم نے اسلام کی صداقت کا اعلان کر دیا تو ہماری عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے یہ تھے، ان کی غلط فہمی یہ تھی۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کے اصل چہرے کو بے نقاب فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے بتایا ہے کہ یہود کس حد تک اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی دشمنی کے اندر کس حد تک آگے جا چکے ہیں۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کو غور سے دیکھیے گا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر۔ آیت کے اندر اگر تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے یہود کے بارے میں بتایا کہ انہیں تو کتاب دی گئی تھی، یہ تو کتاب سے شناسا تھے، یہ تو آسمانی علم سے آگاہ تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ فی الفور اسلام کو قبول کرتے، یہ فی الفور قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت پر ایمان لے آتے، بجائے اسلام لانے کے
बजाय ईमान को कबूल करने के इन्होंने क्या किया, ये तो जिब्त पर ईमान ले आए, ये तो तागूत पर ईमान ले आए, कुरान पर ईमान नहीं लाए। हालांकि इनके पास किताब थी, उस किताब के अंदर सही इल्म मौजूद था, उस सही इल्म से ये आगाह थे। इन्हें तो ये चाहिए था कि ये जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाते, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या वतीरा अपना लिया, ये जिब्त और तागूत पर ईमान ले आए और मुशरिकाना रविश इख्तियार कर ली। अब यहां आप सबसे पहले ये बात समझिएगा कि जिब्त और तागूत क्या है। जिब्त से मुराद है जादू, जादूगर, फालगरी और खराफात वगैरह। हर ऐसी चीज जो बिल्कुल बेकार हो उसे जिब्त कहा जाता है। हाथों की लकीरों का इल्म, सैयारों सितारों का इल्म, ये जो लोग सैयारों और सितारों से किस्मत के हाल बताते हैं, उस इल्म की तरफ इशारा है। तो जिब्त का माना आप कर सकते हैं औहाम परस्ती, तवाहुम परस्ती। अब तागूत का माना समझ लीजिए। तागूत कहते हैं काहिन को, तागूत कहते हैं शैतान को, और तागूत उसे भी कहा जाता है जो गुमराही का सरगना हो, जो गुमराही का बहुत बड़ा लीडर हो, उसे भी तागूत कहा जाता है। अब आप आयत के बकिया हिस्से को भी समझ लीजिए। वयक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, और कहते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुफ्र किया कि ये काफर ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं उनकी निस्बत जो ईमान लाए। अब आप पूरी आयत को एक नजर देखिएगा। क्या आपने उन लोगों को देखा है जिन लोगों को किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो अब एतकाद रखने लगे हैं जिब्त और तागूत पर, और कहते हैं काफरों के बारे में कि ये काफर ज्यादा हिदायत याफ्ता हैं बनिस्बत मोमिनीन के, बनिस्बत अहले ईमान के। जंगे ओहद के बाद काफरों के दो बड़े बड़े सरदार, एक काब बिन अशरफ और एक हुज बिन अख्तब, ये मदीना तैयबा से मक्का शरीफ गए और कुरैश मक्का से इन्होंने जाकर मुलाकात की, मक्का के सरदारों से मुलाकात की। उस जमाने में अभी अबू सुफियान जो कि ईमान नहीं लाए थे, काफरों के सरदार थे, उनसे मुलाकात की। और इस मुलाकात का बुनियादी मकसद ये था कि काफरों को मुसलमानों के मुकाबले के लिए उकसाया जाए, भड़काया जाए, और काफरों के दिलों के अंदर मुसलमानों की मजीद नफरत, बुग़्ज़ और हसद पैदा किया जाए, ताकि कुफार मक्का फिर से हमला करने के लिए मदीना शरीफ पर आकर अटैक करें। इससे कबल दो जंगें हो चुकी थीं, एक गज़वा बदर और एक गज़वा ओहद। अब ये दोनों सरदार गए ताकि हम काफरों को मजीद वरगलाएं, उकसाएं, भड़काएं मुसलमानों के खिलाफ। जब इनकी अबू सुफियान से मुलाकात हुई, अबू सुफियान तमाम तर गुमराहियों के बावजूद मर्दम शनास तो था, तो उसने काब बिन अशरफ और हुश बिन अख्तब से मालूम किया कि हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारे पास पिछली किताबों का इल्म है, तुम तौरात को जानते हो, तौरात को तुमने पढ़ रखा है, तो तुम हमें ये बताओ कि हम दोनों में से, यानी मुसलमानों में से और हम कुरैश मक्का में से हक पर कौन है? क्या मुसलमान हक पर हैं या हम कुरैश मक्का और सरदारान मक्का हम हक पर हैं? तो इस पर काब बिन अशरफ ने कहा, इस पर हुश बिन अख्तब ने कहा कि तुम लोग ज्यादा हिदायत याफ्ता हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम साथी, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। काब बिन अशरफ ने कहा वो गुमराह लोग हैं, तुम हक पर हो, हम इसीलिए तुम्हारे पास चल कर आए हैं और तुम्हारे साथ मुआहिदा करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, तुम हक पर हो। तो इस पर अबू सुफियान ने कहा कि ए काब बिन अशरफ, अगर हम हक पर हैं तो क्या तुम हमारे बुतों को सजदा करोगे? क्योंकि हम तो बुतों को खुदा मानते हैं, हम तो बुतों को इबादत के लायक समझते हैं, तो क्या तुम भी इनको इबादत के लायक समझते हो? तो इस पर काब बिन अशरफ ने और हुश बिन अख्तब दोनों ने बुतों को सजदा किया, और वो जो दो बुत थे उन बुतों के नाम थे जिब्त और तागूत। जिब्त और तागूत ये काफरों के बुतों के नाम थे। इन दोनों बुतों को सजदा किया।
कआब बिन अशरफ ने और हुश बिन अख्तब ने। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इस्लाम दुश्मनी के अंदर किस कदर आगे जा चुके थे कि कहां इस्लाम और कहां यहूदियत और कहां ये कुफार मक्का। अगर आप इनको देखें, किसी किताब के अंदर, किसी आसमानी किताब के अंदर शिर्क की दावत नहीं दी गई, बुत परस्ती की दावत नहीं दी गई, बल्कि बुत परस्ती को ममनू करार दिया गया, बुत परस्ती को शिर्क करार दिया गया, बुत परस्ती को लानत करार दिया गया। लेकिन इस्लाम दुश्मनी के अंदर उन्हें बुतों की इबादत भी सही लगने लगी, क्योंकि अगर वो इस मौका पर सजदा न करते तो पकड़े जाते। लिहाजा उन्होंने जिस बात को उनका दिल हक समझ रहा था, उस अपने दिल की बात को भी तस्लीम नहीं किया, बल्कि उन्होंने बुतों को सजदा किया, बुतों को खुदा माना, महज इन काफरों की हिमायत हासिल करने के लिए। आप देखें कि उन्होंने अपनी पूरी जो खारजा पॉलिसी तरतीब दी है, अपनी जो स्ट्रैटेजी तरतीब दी है, जो हिकमत अमली तश्कील दी है, वो हिकमत अमली ये तश्कील दी है कि अगर काफरों को भी सही कहना पड़े इन मुसलमानों के मुकाबले में, तो काफरों को सही कह दो, मुसलमानों को सही ना कहो, इस्लाम को सच्चा ना कहो। यानी दुनिया का कोई मजहब हो, दुनिया का कोई अकीदा हो, खा वो बातिल से बातिल हो, लग़व से लग़व हो, बेबुनियाद से बेबुनियाद हो, बेकार से बेकार हो, ये यहूदी उसे तस्लीम कर लेंगे, उसे हक पर करार दे देंगे, लेकिन इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान नहीं करेंगे। यह है उनके दिलों के अंदर इस्लाम की दुश्मनी। इस्लाम तो शिर्क की रोकथाम के लिए आया, इस्लाम तो शिर्क की जड़ काटने के लिए आया। और ये यहूदी जो हैं, ये हालांकि ये भी शिर्क के खिलाफ तो ये भी बोलते थे, शिर्क को तो ये भी जायज करार नहीं देते थे, लेकिन यहूदियों ने काफरों की सपोर्ट हासिल करने के लिए, काफरों की हिमायत हासिल करने के लिए काफरों को भी सही तरीन करार दे दिया। सिर्फ सही नहीं कहा, सिर्फ हिदायत पर करार नहीं दिया, बल्कि उनके बारे में कहा कि ये हिदायत सबसे ज्यादा ये हिदायत याफ्ता है। अब इससे अगली आयत सुनिएगा, सूरत निसा की आयत नंबर 52 है। उलाइकल लज़ीना, यही वो लोग हैं जिन पर लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ने इन पर लानत की है, व मन यलअनिल्लाहु, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे, फलन ताजिद लहू नसीरा, फलन तो हरगिज ना ताजिदा तू पाएगा, लहू उसके लिए नसीरन कोई मददगार। इन यहूदियों ने जानते बूझते हुए जब सफेद झूठ बोला, तो आप इनकी अखलाकी पस्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि यही वो बदनसीब हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत कर दी है, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे फिर उसका कोई मददगार नहीं होता। आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर ऐसों पर लानत न बरसेगी तो फिर क्या उन पर रहमत के फूल बरसेंगे। अब इससे अगली आयत सुनिएगा, सूरत निसा की आयत नंबर 53 है। आम क्या लहुम, उनके लिए नसीबुन कोई हिस्सा है, मिनल मुल्क की हुकूमत में, फ़इज़न पस अगर ला युतूनन नासा, लोगों को न देते, नकीरन तिल के बराबर। अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, क्या उनके लिए कोई हिस्सा है हुकूमत में, फ़इज़न ला युतूनन नासा नकीरा, अगर ऐसा होता, यानी इनके पास कोई थोड़ी सी भी हुकूमत होती तो ये लोगों को एक तिल के बराबर भी किसी को ना देते, लोगों में से किसी को एक तिल के बराबर भी ना देते। नकीरन का एक माना यह भी है कि खजूर की गुठली के साथ जो सफ़ेद रंग का गिलाफ सा होता है उसे भी नकीरन कहा जाता है। यानी अगर इनके लिए हुकूमत में कोई हिस्सा होता तो ये लोगों में से किसी को भी खजूर की गुठली के ऊपर लगा गिलाफ भी किसी को ना देते। अब यहाँ हुकूमत की बात अल्लाह पाक ने क्यों इरशाद फरमाई? यहूदियों ने अपनी सियासत को किस अंदाज में तरतीब दिया, अपनी खारजा पॉलिसी को किस अंदाज में तरतीब दिया। ऐसे लगता था कि जैसे यहूदियों के पास शायद कोई हुकूमत है और ये जो मुसलमान हैं, इन मुसलमानों ने इनसे वो हुकूमत छीन ली है
और अपनी उस हुकूमत को बचाने के लिए ये इस हद तक मुसलमानों के खिलाफ चले गए हैं कि ये मुसलमानों को दिल से अंदर से सही समझने के बावजूद भी ये मुसलमानों को कुफ्र पर और बातिल पर करार दे रहे हैं और काफरों को और मुशरिकों को हक पर करार दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ इनकी इतनी दुश्मनी की क्या वजह थी? उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह ये थी कि हसद, इनके अंदर हसद था और सच्चाई के खिलाफ और सदाकत और हक्कानियत के खिलाफ महाज खोलना था और रूए जमीन के ऊपर फितना बपा करना था और इस्लाम का रास्ता रोकना था कि ये दीन इस्लाम किसी तरह से फरोग ना पा जाए, दीन इस्लाम की इशाअत ना हो जाए। हालांकि मुसलमानों ने यहूदियों से कोई हुकूमत नहीं छीनी थी। ऐसा नहीं था कि यहूदियों के पास कोई हुकूमत थी जिस हुकूमत को मुसलमानों ने छीन लिया था। हुकूमत तो नहीं छीनी थी, मगर इनके दिलों के अंदर इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ था, इनाद था, नफरत थी इस्लाम के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ नफरत थी, हक के खिलाफ नफरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर एक और बहुत बड़ी हकीकत को वाज़े फरमा दिया और वो हकीकत ये थी कि ये यहूदी लोग अगर काफरों के पास जाकर काफरों को बरहक करार दे रहे थे और अहले ईमान को गुमराह करार दे रहे थे, तो क्या इनके पास कोई हुकूमत थी कि जिस हुकूमत की बेस पर ये फैसला कर रहे थे? क्या अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी हुकूमत के अंदर कोई हिस्सादार करार दिया था? आप देखें ना, कौन हक पर है और कौन बातिल पर है, ये फैसला करना किसका काम है? ये फैसला करना अहकमुल हाकिमीन का काम है, जो तमाम बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये काम है कि वो ये फैसला करे कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। तो अल्लाह पाक ने ये एक क्वेश्चन किया कि ए यहूदियों, अगर तुम मुसलमानों को गुमराह करार दे रहे हो तो जरा ये तो बताओ कि क्या अल्लाह ने तुम्हें अपनी हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा दिया है जिस हिस्से की बुनियाद पर तुम ये फैसला लेके बैठ गए हो कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है? क्या तुम्हारे पास कोई हुकूमत है? और अगर तुम्हारे पास कोई हुकूमत नहीं है तो फिर ये फैसला तुम कैसे कर सकते हो कि सच पर कौन है और झूठ पर कौन है? अल्लाह पाक ने दूसरे जुमले के अंदर ये बात इरशाद फरमा दी कि अगर इनके पास कोई हुकूमत होती, अगर इनके पास कोई इख्तियार होता, तो उस इख्तियार की बुनियाद पर ये किसी को फूटी कोड़ी भी ना देते, ये किसी को खजूर की गुठली पर लगा छिलका भी ना देते। मतलब ये है कि ये खैर तकसीम ना करते, ये भलाई को तकसीम ना करते, ये लोगों तक अच्छाई का पैगाम ना पहुंचाते। इस्लाम अच्छाई का पैगाम ही तो लेकर आया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। दीन अपना भला और दूसरों का भला चाहने का नाम है। दीन अपना फायदा और दूसरों को फायदा पहुंचाने का नाम है। तो इस्लाम तो सरासर खैर खाही है, इस्लाम तो दूसरों की भलाई चाहता है। मगर ये यहूदी लोग ये किसी का भला नहीं चाहते। ये इस्लाम के खिलाफ महाज आराई क्यों कर रहे हैं? ये इस्लाम के खिलाफ काफरों को जाकर क्यों भड़का रहे हैं, क्यों उकसा रहे हैं? महज खैर का रास्ता रोकने के लिए, महज अच्छाई का रास्ता रोकने के लिए, महज अल्लाह के सच्चे दीन का रास्ता रोकने के लिए। कुछ लोगों को अच्छाई अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को खैर अच्छी नहीं लगती, तो अल्लाह पाक यही इरशाद फरमा रहा है कि ये बदतीनत लोग, ये स्याह बख्त लोग, ये बदकिस्मत लोग, ये इस्लाम का रास्ता रोकना चाहते हैं और उसकी और कोई वजह नहीं है सिवाय इस वजह के कि इनको खैर अच्छी ही नहीं लगती, इनको भलाई अच्छी ही नहीं लगती। अगर इनके पास कोई हुकूमत होती, इनके पास तो हुकूमत है ही कोई नहीं, कोई इख्तियार नहीं, कोई इक़्तिदार नहीं, कोई बादशाही नहीं, और अगर इनके पास हुकूमत होती तो ये किसी को भी खैर अता न करते, ये खैर न बांटते, ये भलाई तकसीम न करते, बल्कि ये अपना नफ़ा और दूसरों का नुकसान चाहते। आज भी अगर आप यहूद की तारीख पर नज़र डालें तो आज की भी यहूद की तारीख यही है। वो दुनिया के अंदर इस्लाम का सफाया कर देना चाहते हैं, इस्लाम को तहस नहस कर देना चाहते हैं, मुसलमानों को
خون کی ندیوں کے اندر بہا دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی فلسطین کے اندر جس انداز میں اسرائیل اپنی بربریت کا اور اپنی صفاکی کا اور اپنی خون ریزی کا اور اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس قدر وہ بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بوڑھوں کا، عورتوں کا اور بیمار لوگوں کا جس انداز میں قتل عام کر رہے ہیں، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، انہیں صرف اور صرف اسلام دشمنی دکھائی دیتی ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام دشمنی کے اندر کر رہے ہیں، وہ دنیا سے اسلام کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اور کیوں اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ آخر وجہ کیا ہے ان کے دلوں کے اندر اس قدر اسلام کی دشمنی کیوں ہے؟ اللہ پاک نے اس کی بنیادی وجہ ارشاد فرمائی، حسد۔ ہم اس سے اگلی کلاس میں یہود کی اسلام دشمنی کی بہت بڑی وجہ حسد بیان کریں گے۔ آج کی کلاس کے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلی ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام میں گہرا غور و خوض کرنے اور اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔